کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں چودھری سجاد نذیر، CEO CHN نیوز۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو بیٹھے ہیں یہ ماشاءاللہ آپس میں میاں بیوی اور جیالہ اور جیالی ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی بچپن سے پیپلز پارٹی کے ساتھ محبت کے ساتھ گزاری، پیپلز پارٹی کے ویری ڈائی ہارڈ ورکر ہیں اور آپس میں میاں بیوی ہیں۔ یہ بہت کم چانسز ہیں، یہ فیو ریئر کیسز ہیں جو کہ میاں بیوی آپس میں کوارڈینیشن ہو اور جیالہ اور جیالی ہوں، یہ بڑے کم لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس پارٹی کی یہ بھی ہسٹری موجود ہے۔ آج ہمارے ساتھ پارٹی کی بہت دبانگ قسم کی اور اپنے زون کی پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لاہور کی، اپنے زون کی، اور سریا بٹی صاحبہ، حاجن سریا بٹی صاحبہ ہیں، اور یہ بہت دبانگ قسم کی ماشاءاللہ جیسے ہماری پارٹی کی روایت ہے اس کے حساب سے یہ پوری جیالی ہیں۔ اور ان کے ساتھ ان کے شوہر رانا افتخار صاحب ہیں، یہ بھی ایک بہت ماشاءاللہ انٹلیکچوئل اور بہت زیادہ یہ پارٹی کے جیالے اور پارٹی ہی ان کا اڑنا بچھونا ہے اور یہ پارٹی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ جی السلام علیکم عمران صاحب۔ تو آج ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ بچپن سے جو پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا رشتہ تھا اور اس کے بعد پارٹی کے ساتھ ساتھ ہی ان کا اپنا جو ذاتی زندگی کا رشتہ تھا اس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں CH نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور ہمیں عزت بخشی۔ شکریہ آپ کا چودھری صاحب، آپ کا بھی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک تو خاندانی طور پہ جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے جی ہمارا خاندان ہے، ٹوٹلی ہمارا خاندان پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ تھا۔ پھر اس کے بعد جب میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا تو اس وقت ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں نصیر احمد صاحب، وہ مجھے لے کے پارٹی میں انٹری ہوئی جب پہلی دفعہ میں گیا ہوں میں، تو میں اس کے بعد میں ڈاکٹر فخر صاحب کے ساتھ ملا ہوں، وہ بھی پارٹی کے ہمارے لیڈر تھے، ڈاکٹر فخر الدین چودھری صاحب۔ تو یہاں سے میری شروعات ہوئی ہے۔ پھر میں اسکول ٹائم سے پھر میں کالج میں گیا ہوں، کالج دور میں PS کے اسٹیٹ پلیٹ فارم سے ہم نے سیاست کی۔ پھر اس کے بعد ہم یوتھ میں آ گئے، پھر یوتھ میں ہم نے اسٹرگل کی، تو پھر پارٹی میں بھی ہم نے اسٹرگل کی۔ صورت ہے ہم جی ماشاء اللہ۔ بٹ صاحب یہ آپ بتائیں گے کہ رانا صاحب کہ آپ کی جو مسز ہیں یہ سریا بٹی صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، یہ بڑا دلچسپ اتفاق ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ فل جیالہ ہیں اور یہ فل جیالی ہیں۔ تو یہ اپنے بارے میں ذرا بتائیں گے کہ انہوں نے بچپن سے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے جوائن کیا اور کن کن کے ساتھ کام کیا اور کیسے پایا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو اور جناب چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو شہید کو۔ ہاں جی السلام علیکم، میرا نام سریا بٹی، میں رنگ محل دے رہن والی ہاں، موتی دروازے تو میں پٹو صاحب نوں دیکھا۔ میری والدہ نے مجھے 5 روپے دیتے تے گوال منڈیوں میں گوشت لین جانی سا، گوشت لین جانی سا تو میں نے 8 آنے دے سن کہ اپنی چیز لے کے کھا لی۔ میں وہ موتی دروازے میں چلے گئی شالمیوں، میں اگے گئی تے اگے ٹانگیاں لیڈے وچ پٹو صاحب بیٹھے سن، ٹانگیاں لاڈا سے ٹانگے کوجوان سارے گئے سن۔ ایک کوجوان نے چکر چنے لیا نال لیا، وہ کھان گیا، پٹو صاحب بیٹھے نے قدر کا سوٹ پایا ہے، وہ کشتی والی ٹوپی پہنی ہے، وہ کوجوان کہہ پٹو صاحب روٹی کھا لو، انہوں نے پھڑیا تو برکی توڑی تو چنے نہ روٹی کھان لگ پیا، وہ نعرے بجن لگ پے جی پٹو زندہ باد۔ ایک کوجوان نے چاہ پیندا پیا سی گلاسی دے وچ، وہ اینا سرکا لاگا سی کہ بہت بھڑا جہا لگتا سی۔ انہیں بھی چاہ پیندے نے کہا پٹو صاحب نو کہ پٹو صاحب چاہ ہی پی لو، انہوں نے پٹو صاحب نے چاہ پھڑی تو چاہ پی لی، اتنے روڑیاں پہن لگ پہ۔ ہوں میں چھوٹی جی سا، میں پٹو صاحب کے افسر جا کے نہ تو میں کھڑی ہوں انہوں نے بیک سائڈ سے،
ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਇਆ हुआ, बेटा भी आया हुआ। ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਏ। ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਪਨ ਨੇ ਰੋਲ ਲਿਆ, ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੋਲ ਲਈਆਂ, ਭੱਟੋ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਦਰ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਲਾਹ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਤਲਾਹ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸਦਰ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਜਦਾ ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਜਦਾ ਮੀਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਤਲੇ ਜਕੂਬ ਸਾਡੀ ਸਾਥਣ ਸੀ। ਸ਼ਮੀਮ ਨਿਆਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, मैं शहीद जी जी। शमीम नियाज़ी साहब का जो है वो भी बहुत बड़ा मकाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और वो बहुत बड़ी दबंग यानी थी, तो ये भी उसी तरह ही थी और उन्होंने भी उनके साथ दिया। ये फिर इन्होंने लोगों ने ना प्यार बहुत किया सी। खालिद गुरकी साहब से अल्लाह ने जनता घर करे, वो भी भैन तरह धियां तरह समझते सन कि वो भी सिर हाथ रखते सन। कोई इन्होंने प्यार मुफ्त नाल 440 काम रहा। 8 जेलों ने मेरिया साजदा मीर के नाल गिरफ्तारियां ने, 13 साथियां 13 ने। आखिरी जी ने वो साड़ी जेल जी ना मुल्तान वाली कट्ठे जेल आपने? हाँ जी, यह बहुत कुर्सी तो मैं मुल्तान सा कि ऐसा साड़ियाँ गिरफ्तारियां कभी स्टेशन तो कभी माल तो कभी आखिरी गिरफ्तारी जी साड़ी असम्बली हाथों से। ये हमारी पीपल्स पार्टी की यही खुशकिस्मती, और आज तक पूरी दुनिया में पीपल्स पार्टी का नाम है कि ये मियाँ बीवी हैं, और एक मुल्तान जेल में है, एक बहावलपुर जेल में है। पूरी की पूरी फैमिलीज जो है वो जियालापन में इन्होंने जेलों में गुजारी हुई है। जी आप बताएं। उस बाद ना फिर बीबी नाल अल्लाह ने ना किया कि बीबी के नज़दीक अल्लाह ने कोई सरबंध बनाता रहा, मैं बीबी को मिलती रही। बीबी ने मैंने पूछना, हाँ बेटी क्या हाल है? मैं कहना बीबी आपका ही ख्याल है। बीबी ने इतना खुश होना ना कि बस सरिया तेन कोई गल आती है कि आपका ही ख्याल है, तो मैं इन्हें च खुश हो जाना। बीबी ने जो मैं मुल्तानों जेल तो आई ना, तो मैंने बीबी ने एक इज्जत दी कि अपने लैटर के उत्ते मैंने जोन की सदर बनाया सी। बीबी के लैटर तो मैं सदर बनी सा। फिर बीबी आए सदरे जरा भोला मुंडा शहीद होया सी। बीबी उत्थे आया तो मैं बीबी ने कहा कि बीबी मैं 137 से उस टाइम मैं 137 मैं सदर असरी है बेटी। बीबी ने ऐसा मुँह फेर के कहा मैं तो आपको बनाने वाली थी, आप मुझे तारीफ करा रही है कि बीबी शहजादी मेरी। ये अपना हमारे जियादों का जो प्यार मोहब्बत बीबी शहीद के साथ रहा है, और उनका भी अपने लोगों के साथ जो प्यार रहा है, ये अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हमें बड़ा ग्रेट लॉस था। बीबी हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी, प्यार करती थी, और इसी की वजह से ये आज तक सारे अपनी उसी तरह अपने उसी कमिटमेंट के साथ ही ये सारे लोग चले। तो राणा साहब आप ज़रा बताएं, ये थोड़ा सा जज्बाती हैं और अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकती बीबी शहीद पे, इन पे हम दोबारा इनके पास आएंगे। आप ज़रा अपना बताएंगे अपना राणा साहब के आपकी जो स्ट्रगल रही है पार्टी के साथ, आपने जो सोचते बर्दाश्त की और उसके बाद पार्टी ने जो आपको इज्जत से नवाजा, उसके बारे में। पार्टी ने हमेशा हमें इज्जत से नवाजा है। हमारे पार्टी के लिए, भुट्टो ख़ानदान के लिए और भुट्टोइज़म के लिए हमने काम किया है। हमने गली मोहल्ले में स्ट्रगल की है, गली मोहल्ले से लेके तो जितनी हमारा इलाका था, हमारा हल्का था, उसमें हमने जद्दोजहद की है। तो मैंने भी सबसे पहले आपको जैसे मैं पहले बता चुका, पहले PSF फिर यूथ फिर पार्टी। जब पार्टी है, जब पार्टी के अहदेदार हैं तो मैं सबसे पहले PP 116 पहले मैं यूथ का प्रेसिडेंट, PP 116 का प्रेसिडेंट बना। PSF के बाद PP 116 लाहौर 1 है, सबसे पहले शदरा यहाँ से शुरू होता है, लाहौर शुरू होता है, शदरा 1 नंबर हल्का है सबसे पहले लाहौर का। तो PP 116 से मैं प्रेसिडेंट बना। उस वक्त हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट डॉक्टर फखरुद्दीन चौधरी साहब थे। तो फिर उसके बाद पार्टी के उधर मुझे मिला, वो मैं UC प्रेसिडेंट बना अपने हल्के में।
तो फिर लाहौर का वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर लाहौर डिवीज़न का बना, फिर इसी तरह पंजाब में भी फिर मुझे उधर दिया गया। माशाल्लाह। पार्टी ने मुझे बड़ा इज्जत से नवाजा है। तो हमने भी पार्टी के लिए मेहनत की थी, स्ट्रगल की थी। जैसे पार्टी ने आवाम की खिदमत की, हमारा एक ही मिशन अब तक है कि आवाम की खिदमत। शहीद बीबी मुझ पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान करती थी, बल्कि मुझे एक दफ़ा आपको बात बता दूँ, एक दफ़ा मेरा और सरैया भट्टी का आपस में थोड़ा झगड़ा हो गया। तो बीबी लाहौर में आई हुई थी, तो बीबी ने उस वक़्त थी सेक्रेटरी नहीं खां थी, उसे नहीं खां साहब का उनका फ़ोन आया मुझे कि आप फौरी है, बीबी बुला रही है, आप इधर पहुँचे, आप कितनी देर में? आप आधे घंटे में पहुँचे। मैं कहा भाई हमने तो शाहदरा से आना था, इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकते। कहते फौरी पहुँचे आप, सरैया भट्टी को भी साथ लेके हम गए। फिर हमारी फिर सुलह को बीबी ने कहा आज के बाद नहीं आपने लड़ना। तो ऐसे फिर ऐसे मतलब जब भी स्ट्रगल का कोई मूवमेंट होती थी, स्ट्रगल होती थी, बीबी बहुत ज़्यादा मुझ पर इत्मीनान करती थी, बहुत ज़्यादा। कोई भी अहम ड्यूटी जब लगती थी तो वो बीबी मेरी ड्यूटी लगाती थी स्पेशल। तो इसी तरह ही फिर बीबी के दौर में जब बीबी ने बुलाया हमें, तो वो हमारे ड्यूटियाँ लगाना, फिर हमने काम करना, तो बीबी के साथ बहुत ज़्यादा था हमारा। तो तकरीबन हमारी मुलाकात बीबी के साथ होती थी। तो जो बीबी का जैसे बीबी चाहती थी ना, जैसे जो ख्याल बीबी के होते थे वही लोगों तक पहुँचाते थे। तो वही उसी वजह से हम कामयाब थे उस वक्त कि पार्टी की जो स्ट्रगल है ना पार्टी की, वो बहुत बेहतरीन उस वक्त चल रही थी। जी राना साहब, आप मुझे ज़रा बताएंगे कि माशाल्लाह आप तो एक घराना ही आपका पीपल्स पार्टी है, और आप समझते हैं कि आप ज़्यादा बेहतर जियाले हैं या आपकी जो मिसेज हैं वो ज़्यादा बेहतर जियाली हैं? वो ऐसे होता है, मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा जियाला हूँ, ये कहती है कि मैं बड़ा जियाला हूँ, क्योंकि हमने आज तक पार्टी प्लेटफॉर्म पे जद्दोजहद की है, पार्टी भुट्टो ख़ानदान के लिए की है हमने। तो हमने किसी शख्सियत के लिए नहीं हमने की, हमेशा पार्टी का। लेकिन जो हमारा वो मैं कहता हूँ मैं बड़ा जियाला हूँ, वो कहते हैं मैं बड़े जियाली हूँ। तो आज तक हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इंशाल्लाह पार्टी के लिए जद्दोजहद। इसका मतलब है कि अभी तक कोई नहीं जीत पाया कि बड़ा जियाला कौन है। हाँ जी, आप हमें बताएं कि जैसे कि बड़ा मुश्किल है, आपके जज्बात को मैं समझता हूँ, ताकि मैंने भी बीबी शहीद के साथ यूके में काम किया हुआ है, और बिलावल जो चेयरमैन है हमारे, वो बीबी उनको अपने साथ लेके आती थी। तो अभी इत्तेफाक है काफ़ी अर्सा से मैं जब बिलावल साहब को देखता हूँ तो मेरा अंदर पूरा हिल जाता है, मुझे उनकी शक्ल में बीबी याद आती हैं, और मैं उनके पास नहीं जा सकता, उनको हाथ नहीं मिला सकता, ताकि मेरी बीबी के साथ हमारी वर्किंग की यादें जो है ना वो ताज़ा हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, कि इतना खूबसूरत लीडर पूरी दुनिया में नहीं है जितना माशाल्लाह उसको अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी हुई है, जितनी अल्लाह ताला ने उसको अपना एक ख़ानदान ऐसा दिया हुआ है कि वो ख़ानदान ही पूरी दुनिया में एक इससे बड़ा शहीदों का ख़ानदान नहीं है कोई भी। और आप ज़रा बताएंगे कि अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आपने कैसा पाया, और अपने नौजवानों को, अपने अवाम को ये मैसेज दें कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एज ए वज़ीर आज़म आएंगे और इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। आप ज़रा बताइएगा प्लीज़। मेरी मुलाकात ना ज़रदारी साहब नाल हुई, ठीक, जिस वे साड़ी गिरफ्तारी हुई सी ना आशा चौक तो सरवर रोड तो रिहा हो के असीं जदों आए सां, पुराने एयरपोर्ट के कोल अपना दफ्तर सी साडा। ज़रदारी साहब भी बहुत अच्छे हैं, साढ़े लीडर ने। जिस वे रिहा हो के आए नाल मेरी बेटी भी सी, राणा साहब अंदर असीं जो जाकर मुलाकात की ना, तो मेरी बेटी ने कहा मामू मैंने आपके साथ तस्वीर बनानी। उन्होंने हंस के बाँह फाड़ के कहा कि आ बेटा मेरे ना तस्वीर बना। वो भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उन्होंने जिंदगी करे, अल्लाह बड़ी उम्र करे, अल्लाह इज्जत दवे, शोहरत दवे उन्होंने। उस तो बाद मेरा तार कराया बिलावल भट्ट साहब ने, अल्लाह जनता च कार करे, वो भी मेरे लीडर साहब उत्थे आए बिलावल बच्चे, उन्होंने तार कराया कि बिलावल साहब चेयरमैन साहब ऐ सरैया भट्टी ना ताड़ी माँ के बहुत नज़दीक सी, ताड़ी बालदा ने ये बड़ी जियाली है। शहजादे साढ़े ने अक्सर मेरे मुँह वाले वेख्या तो इन्ना खुश होया,
ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਲਾਵਲ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਲਾਵਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਨਸਰਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਡੀ उम्र पावे। खुदावंद करीम जी, बहुत मेहरबानी। आप राना साहब अब आप बताएंगे ज़रा कि आपको बिलावल साहब में जो आपने देखी हैं सलाहियतें, क्वालिटीज़, और आप पाकिस्तान की आवाम को मैसेज दें कि वो उनका साथ दें और उनके साथ चल के पाकिस्तान की जो रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और पाकिस्तान की मुआशी मामलात हैं वो ठीक करें। जी, जैसे मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहबा अपनी आवाम का ख्याल रखती थी हर इशू के ऊपर, इसी तरह ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वो उनको आवाम का ख्याल है, उनको आवाम का दर्द है। जो जैसे हालात हैं हर इशू पे वो अवामी दर्द महसूस करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे बिलावल साहब ने पहले भी पाकिस्तान की आवाम के लिए, नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया था। तो इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम से लाखों करोड़ों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर उन्होंने अपने ही बिलावल साहब ने भी उन्होंने अपने ही दौर में नौजवानों को नौकरियां दी हैं। उस नौकरियों की वजह से भी बड़े घर हैं वो आज पल रहे हैं। फिर जो तनख्वाहें बढ़ाई थी पीपल्स पार्टी ने उसी दौर में, वो भी इन्होंने 100% तनख्वाहें बढ़ाई थी। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा ही अवाम का ख्याल रखा। मैं समझता हूँ कि बचपन से लेकर बगैर मैं अल्फों अल्लाह ताला को हाज़िर नज़र जानकर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई पार्टी अवाम का ख्याल नहीं रख सकती, या किसी ने कोई अवामी प्रोग्राम आज तक नहीं दिया। सिर्फ अगर दिया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ही ऐसी जमात है कि जो मज़दूरों का, किसानों का, तलबा का ख्याल रखती है। तो इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब हैं, तो बिलावल साहब बहुत बेहतर तरीके से, जैसे आपने उनका वो पूरी दुनिया में उसका जैसे भुट्टो ख़ानदान का रिकॉर्ड है, बिलावल साहब का भी अब वही रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में भी, और पाकिस्तान के अवाम में भी जैसे पीपल्स पार्टी ने खिदमत की है अवाम की, इसी तरह मुझे उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो साहब भी अवाम की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के अवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को आप वज़ीर आज़म बनाएं, तो इंशाअल्लाह ताला जैसे उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, नौजवानों को नौकरियाँ दी, रोज़गार दिया, तो इंशाअल्लाह ताला अब जब दोबारा इक़्तिदार में बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के ठीक होंगे और सारे इलाके ठीक है। जो आजकल जो महंगाई का जो दौर है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला वो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। राना साहब, आपकी बातों से ज़ाहिर होता है कि आप एक भुट्टो फैमिली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो बच्चे हैं वो भी आपकी तरह ही जैले होंगे, या आपकी जो बच्चियाँ हैं वो आप ही की तरह जैली होंगी। उनके बारे में आप बताएंगे कि वो आपके साथ कैसे शाना बशाना चलते हैं, या वो भुट्टो फैमिली का ही एक हिस्सा है? मेरे ऐसा है कि एक मेरी बेटी, एक बेटा है छोटा, वो तो अब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हमें तस्वीर घर पे लगाई होती है, ये वो देख के आज तक वो यही कहते हैं ये हमारी बड़ी फुफो है। तो इसलिए जैसा कि ये मोहतरमा के साथी रहे हुए हैं, ये पूरी की पूरी फैमिली उनके साथ काम किया हुआ है, हमें आज तक जैसे अपने बड़ों का दुख भूलता नहीं है। तो वो भी हमारी बड़ी थी, हमारी साथी थी, और हमारी वो माँ थी, बहन थी, सारी थी, लीडर थी। उनके प्यार मोहब्बत कभी पार्टी भूल नहीं सकेगी। तो मैं इनके जज्बात समझता हूँ और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बिल्कुल ना हस्बैंड एंड वाइफ, इवन ये बच्चे इनसे बड़े जाने हैं। तो इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जानों से कि अपने बच्चों को भुट्टोइज़्म का लेक्चर दें, अपने बच्चों को भुट्टोइज़्म का बताएं कि दुनिया में भुट्टोइज़्म के साथ चल के ही कामयाबी है।
بہت مہربانی جی, بہت شکریہ آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ تعالی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے.